Good morning, student. In this video, you will learn about HTML. In this video, you will learn that how HTML you use and where we can use that HTML code. So in this video, you will learn that what is HTML5 and the features of HTML5. Then we will know that how we can create HTML file and the structure of an HTML document, that what will be the structure and what the particular structure we will follow for creating an HTML document. Then we will discuss about some tags, just like a container and empty, and then and last we will run our file, HTML file. So now let's begin with this video. So before going to start HTML, we just need to remember about these things, that internet, website and browser. So we are all very well known about the internet, website and browser. So what is the internet? In your earlier classes, you have already learned that about internet, and the internet is a huge network of interconnected computers. To surf the net, that is to check on the different website, you need to special software which is known as a browser. So whenever you need to surf anything on the internet, you just need a software which is known as a browser. So you can have there are the multiple options here, like Internet Explorer, Google Chrome, and etc. So the browser send your request to the server, which send back the information requested by the browser. Okay, so whenever we search anything from the browser, so it will request to the server with our request, and the server will respond according to our request. Okay, so now we just need to know about what is the server. So server is a computer on the internet that store a huge amount of data and is required to run a website. So a website is consist of web pages, and these web pages are created using HTML. Okay, so what is the mean of server? तो सर्वर क्या है? आपका एक पर्टिकुलर एक कंप्यूटर आप लोग उसको बोल सकते हैं, जहाँ पे सारा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड है। तो जहाँ हम लोग स्टोर करते हैं हमारे इंटरनेट पे जितना भी डेटा है, हम लोग एक पर्टिकुलर सर्वर पे स्टोर कर देते हैं। और जब भी हम लोगों को उस डेटा में से या फिर किसी भी तरीके से हमको कोई भी इंक्वायरी या कोई भी चीज सर्च करनी है, वी जस्ट नीड टू क्रिएट इंक्वायरी और जस्ट गूगल ऑन द इंटरनेट, एंड फिर वो क्या करता है, हमारे रिक्वेस्ट को सर्वर पे ले जाता है और सर्वर पे से वहाँ पे उस पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड डेटा को फिल्टर करके हमारे कंप्यूटर पे डिस्प्ले करता है. So this is known as a server works. So now next is what is HTML, that how HTML work and what is HTML. So HTML stands for the hypertext markup language. It is the most commonly used language for the describing or writing a web page using ordinary text. So we will create our web page which is we use to surf और use the internet. जब भी हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो हम लोग वेबसाइट को सर्च करते हैं, और वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और ये वेब पेजेस कौन से लैंग्वेज में बनते हैं? ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज स्टैंड फॉर द HTML. सो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे HTML के वेब पेजेस बनाना. So every web pages is an actual and HTML file with extension STM or HTML. So using HTML, you can create document like a web page, which are to be displayed on the World Wide Web. So जब भी हम लोग HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो ये जो भी पेजेस हैं वो विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर वी कैन डिस्प्ले. और जब भी हम लोग कोई वेबसाइट सर्च करते हैं या फिर कभी कोई क्रिएटर अगर वेबसाइट बनाता है, तो वो वेब पेजेस बना के उनको कलेक्शन करके उनका एक पर्टिकुलर लिंकिंग करके उनको वर्ल्ड वाइड वेब पे स्टोर कर दिया जाता है, और वहां से हम लोग इन वेब पेजेस को एक्सेस कर पाते हैं. So hypertext refer to a way in which different web pages, HTML document like a, are linked together.
So these links available on the web pages are called hypertext. HTML is a markup language, which means that you use HTML simply markup, a text document with a tag which tell the web browser that how to display the text. It is not a programming language. It only tell the browser that how to display content of hypertext document. So what is the HTML stand for? So it's not a programming language. It's just a language which define or which tell the browser that how the particular data will be displayed on the web page or browser. So over the time, HTML has introduced many changes and variations in HTML leading to the different version. So the latest version of the HTML is HTML5. It has added a plethora or features to original HTML. So now features of some HTML HTML. So there are some features of HTML. First one is audio and video element. Then we will have canvas and a new input type. So what is the mean of this feature, audio and video? That HTML5 allows you to enable audio and video files directly into a web page instead of using plugin. Okay, so with the help of HTML5, we can add our any audio and video in our HTML document. Now next, which is canvas element. So you can generate graphic programmatically in browser. That is, you can now draw a line, shape, text, image, etc. using this canvas element. And the last one is new input type. So HTML5 has a many new input types like a data, email, color, month, number, and etc. to simplify the designer's task. Okay, so these all are the some features of HTML5. Now, before creating an HTML document, we just need to know about the structure of an HTML document. That how we can create an HTML file. Just before it, we just need to know the structure of HTML document. वो होता कैसे है, कैसे हमको प्रोग्राम लिखना है, वो उसके बारे में हमको इसमें पहले जानना पड़ेगा. So here you can see the HTML document structure. So first of all, जब भी आप लोग HTML की फाइल क्रिएट करोगे तो सबसे पहले आपको नोटपैड ओपन करना है. नोटपैड में आपको क्या लिखना है, इस तरीके से टैग लिखना है लेस देन HTML, और फिर इसको इस तरीके से जो ग्रेटर देन वाला जो ब्रैकेट है उसको आपसे क्लोज करना है. देन यू हैव टू टाइप द हेड. फिर हेड के अंदर आपको टाइटल लिखना है. सो हियर यू कैन गिव द टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट. देन हेड को आपको क्लोज करना है. तो ये जो स्लैश है, इस तरीके से चीजें क्लोज होती है. देन वी विल स्टार्ट आवर बॉडी ऑफ डॉक्यूमेंट. सो बॉडी ऑन करेंगे यहाँ से, ठीक है. और फिर उसके बाद में जो भी आपको कंटेंट आपको लिखना है उस वेब पेज पे जो डिस्प्ले करना है, वो आप लोग यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर लिखेंगे. ओके, देन बॉडी को क्लोज कर देंगे. तो देखिए बॉडी ओपन होती है आपके यहाँ पे बॉडी टैग से, और फिर बॉडी के आगे जब स्लैश लगा देते हैं तो ये क्लोजिंग टैग है. सो ये सबसे पहले आपको ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये है आपका ओपनिंग टैग फॉर HTML. ये है आपका हेड का ओपनिंग टैग. देन वी जस्ट ओपन द टाइटल टैग, और फिर उसके बाद में जस्ट हमको टाइटल टैग को क्लोज करना है, फिर हेड टाइटल को क्लोज करना है, और फिर हमको बॉडी ओपन करनी है. जो HTML टैग है वो एकदम लास्ट में जाके क्लोज होगा. बाकी आपकी हेड यहाँ क्लोज हो जाएगा और बॉडी टैग ऐसे इस तरीके से क्लोज होगा. ओके, so you will known more efficiently when we create the HTML file. So now let's begin with the creating an HTML file. So to create HTML file, you just need to go with the Notepad. Okay, so first of all, to create an HTML file, you just need to open the Notepad. So जैसे हम लोगों ने Notepad क्लिक किया, हम लोग को Notepad खुल जाएगा. So here you can see the Notepad. Okay, okay. So here you can see the Notepad. और अब आपको क्या करना है, HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है.
तो हम लोग एक काम करते हैं, छोटी सी फाइल बनाते हैं। कैसे इस तरीके से हम लोग HTML फाइल को बनाते हैं? तो HTML फाइल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, नोटपैड खोलना है, और नोटपैड खोलने के बाद में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे टैग आपको ये लेना है और इसके अंदर लिखना है HTML, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है हेड, तो हेड लिखना है। हेड लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है, टाइटल, तो टाइटल लिख दिया। और टाइटल के अंदर हम लोग नाम लिखते हैं हमारे इस जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल, तो मैं लिख देता हूँ स्कूल। और अब टाइटल टैग को क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए देखिए हम लोग ये स्लैश लगाते हैं, देन वी जस्ट नीड टू टाइप द नेम ऑफ दैट टैग। ओके, ये है टैग आपका। टाइटल टैग को हमने क्लोज कर दिया। अब हमको क्या करना है, हेड टाइटल को भी क्लोज करना है। हेड टाइटल को क्लोज कर दिया। ओके, नाउ वी जस्ट नीड टू स्टार्ट बॉडी टैग। हमको जो भी आप डिस्प्ले करना है वो बॉडी टैग के अंदर देखना है। यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब इसके नीचे हम लोग कुछ भी लिखेंगे वो सारा चीज वहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो सपोज करो जैसे मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे नेम लिखा है और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जस्ट, ठीक है। मैं केवल अभी मेरे नेम को डिस्प्ले कर रहा हूँ। देन वी जस्ट क्लोज द बॉडी टैग। ओके, हमको बॉडी टैग क्लोज करना जरूरी है। ध्यान रखिए जो भी आप टैग खोलेंगे वो सारे टैग करना क्लोज जरूरी है, बट एक स्ट्रक्चर के हिसाब से कि कौन सा टैग कब बंद होगा। ओके, देन लास्ट में जब आपका पूरा फाइल खत्म हो जाए उसके लास्ट में आपको क्या करना है, HTML टैग को क्लोज करना है। ध्यान रखिए HTML टैग को क्लोज कर दिया। सो अब आपका जैसे एक ये फाइल कंप्लीट हो चुकी है जिसमें केवल डिस्प्ले होगा पर्टिकुलर नेम। ओके, सो आफ्टर टाइपिंग दिस कोड यू जस्ट नीड टू सेव दिस। ओके, सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फाइल पे गए, फाइल पे क्लिक करने के बाद में सेव एज पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एज पे किया, क्लिक किया, देन एक विंडो खुलेगी। अब आपको एक पर्टिकुलर फोल्डर चुन लेना है यहाँ पे कि कौन से फोल्डर में आपको चीजों को सेव करना है, आपकी कौन सी फोल्डर में आपको फाइल को सेव करना है। तो फाइल मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे HTML नाम से मैंने फोल्डर बना लिया और इस फोल्डर में मैं सेव करने वाला हूँ। अब मैं फाइल का नेम लिख देता हूँ, FIRST फर्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब फाइल का नाम लिखने के बाद में आप ध्यान रखिए विदाउट गिविंग एनी स्पेस यू जस्ट प्रेस द डॉट। ओके, आपको डॉट लगाना है और फिर क्या लिखना है, HTML। ध्यान रखिए, तो ये HTML लिखना बहुत जरूरी है जब भी आप लोग HTML की फाइल सेव कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए आपको केवल नाम लिख के ही एंटर नहीं दबाना है, सेव नहीं करना है। आपको क्या करना है, फाइल नेम लिख के फिर डॉट लगाना है विदाउट गिविंग एनी स्पेस। ओके, स्पेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं लगाना है, और डॉट लगा के HTML लिखना है, पूरा HTML। ओके, देन यू जस्ट प्रेस द सेव बटन। तो सेव बटन पे क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे आपका नेम चेंज हो गया, फर्स्ट आ गया। अब हम जाएंगे उस फोल्डर में जहां हमने इसको सेव किया है। तो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक कर दिया, फिर हमारा जो फोल्डर था वो डेस्कटॉप पे है। तो डेस्कटॉप पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद में स्कूल में गए और यहाँ पे HTML के नाम से ये रहा। तो यहाँ पे देखिए ये फाइल सेव हो चुकी है, बट यहाँ पे जो इसका एक्सटेंशन है वो डॉट HTML होगा। तो यहाँ पे टाइप आ गया, और ये जो आप क्रोम का साइन देख रहे हैं ये इस फाइल को ओपन करने के लिए जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है वो आया है। तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में या फिर जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं उसमें कोई बाय डिफॉल्ट ब्राउजर कुछ या तो एज हो या फिर कोई और ब्राउजर हो तो उसका आइकन आ जाएगा, बट नोटपैड का आइकन नहीं आएगा। ये ध्यान रखिए क्योंकि आप लोगों ने जो फाइल सेव की है वो किस में सेव की है, डॉट HTML करके। तो रन करते हैं, रन करने के लिए देखते हैं क्या है। जब बस क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे फाइल के ऊपर तो ये रन हो जाएगी ब्राउजर में। तो देखिए ब्राउजर ओपन होगा, ये पूछ रहा है कि कौन से ब्राउजर में, तो ये ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद में ये देखिए, तो ये फाइल ओपन हो गई स्कूल के नाम से, ये टाइटल यहाँ पे आ गया इसका, और ये योगेश यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट HTML फाइल और यू कैन रन। ओके, तो ये है। और कुछ चेंजेस करने हैं हमको इस फाइल में पर्टिकुलर में, तो हम जाते हैं जैसे इस फाइल में अगर चेंजेस कर रहे हैं तो गए यहाँ पे योगेश की जगह अगर आप सपोज करो मैं कुछ और नेम लिख देता हूँ। चलिए, अब इसको सपोज मुझे इसकी जो साइज है वो
बढ़ानी है, ठीक है, वी हैव टू इंक्रीज द साइज, तो वी जस्ट नीड टू यूज द सम हेडिंग्स। ओके, सो हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो यही है कि हम लोगों को टैग्स के बारे में इसमें डिस्कस करना है। ओके, सो एचटीएमएल टैग क्या हो जाएगा आपका? एचटीएमएल टैग सबसे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि एचटीएमएल टैग की, सो व्हाट इज द दिस मीन एंड वर्क ऑन दिस टैग। So the browser must be able to identify the document as an HTML document. To do so, the document start with the HTML tag. Okay, so that's why we just need to start with the HTML tag to tell the browser that it this document will be the HTML. Okay, the HTML element consists head and body element which contain the HTML elements. Okay, so ये जो HTML जो टैग है ये कंटेन करता है आपके हेड और बॉडी को, और हेड जो है वो किसको कंटेन करता है? आपके टाइटल को। सो हेड, दिस इज द डॉक्यूमेंट हेडर which can keep other HTML tags like title or link. It contain the detail about the document, title, script and used. Okay, then title, what is work of this title? So this tag used inside the head tag for writing the document title. So here our title is the first. Okay, sorry, school. So हमारे यहाँ पे जो टाइटल है वो क्या है? स्कूल है। And the last tag which is body tag. So this tag contain the documents body where the text to be displayed. जो भी हमको टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो हमको सारा कहाँ लिखना है? वो यहाँ लिखना है। और जितने भी हम लोगों को फॉर्मेट यूज करने हैं, बॉडी का कलर, टेक्स्ट कलर, जो भी हम लोग यूज करेंगे वो सब काम कहाँ करेंगे? इस बॉडी टैग के बीच में। सो बॉडी टैग ओपन जो है यहाँ पे, इसके और इसके बीच में हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ लिखेंगे। ओके, अगर हमको पेज इंसर्ट सॉरी अगर कोई इमेज इंसर्ट करनी है, टेबल इंसर्ट करनी है, या हमको जो भी टेक्स्ट इंसर्ट करना है वो सब हम काम यहाँ करने वाले हैं। ओके, देन द हेडिंग school be bold in a and has bigger font size than the other text in the next line. So say तो आपको क्या करना है? टाइटल के अंदर आपको टाइटल लिखना है, और if we just want to add some new text, so we can add here. Okay, अब बात करते हैं हम लोग इन टैग्स के टाइप्स की। ओके, सो देयर इज अ टाइप ऑफ टैग। सो यहाँ पे दो तरीके से टैग्स के टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज कंटेनर और सेकंड वन इज एम्प्टी। ओके, सो कंटेनर टैग आर दीज टैग विच हैज ओपन एंड ऑफ टैग। ओके, सो जो भी टैग्स हम लोग बात करेंगे, जो भी जो आपको इस तरीके से जो ये टैग्स दिख रहे हैं, है ना, ये जो टेक्स्ट है जो कि इस कॉर्नर ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग लिखते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं टैग। तो दो तरीके से टैग होते हैं ये, एक कंटेनर और एक एम्प्टी। सो कंटेनर टैग वो होते हैं जिसके अंदर ऑन और ऑफ दोनों तरीके से टैग होते हैं। ठीक है, तो देखिए एचटीएमएल ऑन भी हो रहा है और ऑफ भी हो रहा है, हेड ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है, मतलब कि ओपन और क्लोज दोनों टैग है। सो दीज टैग्स आर कॉल्ड एज अ कंटेनर टैग। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ देन एम्प्टी टैग? तो फिर एम्प्टी टैग कौन से होंगे? तो these tags, empty tags are those which have only on tag, that is only starting tag. For example, like we just use one empty tag. मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं एक HR, ठीक है। So we just type a tag here which is empty tag is a HR। तो हमने HR tag को यूज किया है, HR tag यूज करते हैं। अब हम लोग सेव करते हैं इसको कंट्रोल प्लस एस करके, या फिर आप लोग यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। ये सेव कर दिया है यहाँ पे। अब ब्राउजर में जाएंगे, ब्राउजर में जाने के बाद में जैसे इस बार इसको क्लोज कर देते हैं और रन करते हैं। तो रन करने के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग? वापस उस फाइल पे और डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपने क्लोज नहीं किया है तो आप लोग उस पर्टिकुलर फाइल को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इस पे क्लिक किया है और जैसे ये ब्राउजर में खुलेगी तो देखिए क्या चेंजेस आने वाले हैं। ये ब्राउजर में फाइल खुल चुकी है। ठीक है, तो देखिए पहले आ रहा था केवल योगेश, अब उसके बाद में यहाँ पे लाइन भी आ रही है। ओके, सो दीज आर द चेंजेस विद बाय दिस टैग। ये जो टैग आया है HR, इसने क्या किया है? हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए टैग होता है। ठीक है, इस टैग से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टली। तो देखिए ये टैग केवल ओपन हुआ है, इसको हमने क्लोज नहीं किया है। सो दिस टाइप ऑफ टैग विच ओनली ओपन एंड नो नीड टू क्लोज इट, सो दिस टाइप ऑफ टैग इज नोन एज अ एम्प्टी टैग। ओके, सो ये है आपके एम्प्टी टैग।
बट अब अगर इसके विड्थ को हमको बढ़ाना है, ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स डाल देंगे जो कि टैग के साथ में, ठीक है। सो ये होते हैं इसके एट्रीब्यूट्स जो कि हम लोग इसके हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी विड्थ को मैं चेंज कर देता हूँ, तो मेरे को विड्थ इक्वल 40%। सेव करूंगा, कंट्रोल प्लस एस कर दिया, या फिर आप जाके फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर दीजिए और वापस यहाँ आ जाइए ब्राउजर पे। अगर ये फाइल पहले से खुली है तो इसको क्या करना है, आपको रिफ्रेश करना है विद दिस बटन, या फिर आप F5 दबा के भी आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए, तो इसकी जो विड्थ हो गई वो क्या हो गई आपकी 30%, सॉरी 40% जो दिया था वो 40% हो गई। ओके, सो ये चेंजेस होते हैं टैग्स के अंदर जो कि हम लोग किसकी हेल्प से कर पाएंगे, एट्रीब्यूट की हेल्प से। Okay, so these are the tags. Now we will see the different type of tags, how we can use it. Okay, so अब हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आ गए, इसी के अंदर हम लोग एडिट करते जाएंगे और टैग को यूज करते जाएंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास में हेडिंग टैग। ओके, सो बेसिक एचटीएमएल टैग हम लोग देख रहे हैं। तो हेडिंग मतलब कि आपको अगर पेज की हेडिंग लगानी है तो यू जस्ट नीड टू टैग दिस वन इज H1। ओके, सो H1 हेडिंग लिखा दिया। अब ये है आपका कंटेनर टैग, तो इसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेडिंग में हमको सपोज करो मैं लिखता हूँ हेलो, मैंने हेलो वर्ड लिख दिया और इसको मैं अब हेडिंग टैग को क्लोज भी मुझे करना पड़ेगा। ओके, सो बिकॉज दिस वन इज container tag, okay, so we need to close it. So by after using this tag we just need to close it. तो ये है h1 tag, heading tag, okay। ये हेडिंग टैग होते हैं आपके H1 से लेके, ये जो टैग होते हैं ये आपके होते हैं 1 to 6। ओके, सो अब ये 6 किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमने H1 ही काम में ले लिया, अब इसको सेव करेंगे, कंट्रोल प्लस एस कर दिया और यहाँ वापस यहाँ गए और इसको रिफ्रेश करते हैं। सो रिफ्रेश करने के लिए F5 दबाया मैंने, तो देखिए हेलो वर्ड आ गया और वो भी बोल्ड में। ओके, पेज को मैं, हाँ, ओके। सो ये है तरीका आपका H1 को यूज करने का। अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग। तो H1 जो हेडिंग है वो H1 से लेके आपकी कहाँ तक है, H6 तक। ओके, तो मैं इसको कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर रहा हूँ और अलग अलग टैग को यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। तो H1 की जगह मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। और H2 जब आप लिखोगे तो H2 ओपन होना चाहिए और H2 ही क्लोज होना चाहिए, ठीक है। H3 ओपन होगा तो H3 ही क्लोज होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, देन H4 क्लोज किया है तो H4 ओपन हो रहा है। देन H5 ओपन हुआ है तो H5 को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद में एक और टैग ले लेते हैं H6, H6 ले लिया और H6 को ओपन कर लिया। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप टैग यू ओपन कर रहे हैं वही टैग आपको क्या करना है, क्लोज करना है। देन प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स, सेव किया, सेव करने के बाद में यहाँ आए और रिफ्रेश किया इसको। रिफ्रेश करने के बाद में देखिए ये, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द H1 एंड H6। ओके, सो जैसे जैसे हम लोग नंबर बढ़ाते जाएंगे इसका जो फ़ॉन्ट का जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ हेडिंग टैग। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टैग की जिसका नाम है पैराग्राफ टैग। ओके, सो पैराग्राफ एंटर करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा पैराग्राफ टैग विच इज स्टैंड एज अ P। ओके, फिर हमको पैराग्राफ एंटर करना है, तो मैं एक पैराग्राफ को टाइप कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक पैराग्राफ को जस्ट पेस्ट कर दिया, ठीक है, टाइप करने की बजाय। सो एक सीधी लाइन में एक पैराग्राफ ये आपका टाइप हो चुका है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ जो टैग है उसको क्या करना है, क्लोज भी करना है। ओके, क्योंकि ये क्या है, कंटेनर टैग है, ठीक है। सो हियर वी जस्ट क्लोज द पैराग्राफ टैग। ओके, सो ये पैराग्राफ टैग मैंने यूज कर लिया है, फिर इसको क्लोज कर दिया है। अभी अब क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद में वापस ब्राउजर पे जाना है। सो ब्राउजर पे जाके देखेंगे अब लोग, हम वापस इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं ये पैराग्राफ आ गया। So whenever we use or we want to display some long text, okay, in the format of paragraph, so that time we just need to use this tag paragraph. Okay,
और अगर आपको पर्टिकुलर सपोज करो कि यहाँ से यू और इसके बीच में अगर इसको ब्रेक करना था, ठीक है, that time we just need to use that tag br. ओके, सो एचआर क्या था आपका? एचआर है आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यह लाइन आपकी ब्रेक करता है और एक लाइन ड्रॉ कर देता है। अब हम लोग यूज करेंगे बी आर। सो बी आर टैग से क्या करेंगे आप लोग? बी आर टैग से आपसे हेल्प होगी कि आप उस पर्टिकुलर लाइन के आगे जो भी लाइन आएगी वो उसके नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो ये यू लाइन, ठीक है, अभी ये देखिए हमारे ब्राउजर के अंदर कंटिन्यूटी में आ रहा है, यू कैन यूज दिस गैलरीज। ओके, सो इसके जस्ट आगे क्या करना है आपको? बी आर यूज करना है। तो बी आर क्या है आपका? एम्प्टी टैग है, तो बी आर जस्ट लिखना है हमको और इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही बी आर लिखा, कंट्रोल एस सेव करेंगे और सेव करने के बाद में ये देखिए सेव हो गया और वापस जाएंगे हम लोग यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए ये यू कहाँ आ गया आपका? ये नीचे आ गया विदाउट एनी लाइन। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी आर एंड एच आर? तो बी आर में क्या होता है, आपकी लाइन ब्रेक होके जस्ट उसके आगे की जो कंटेंट है वो जस्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं होती है बस। बट एच आर के अंदर क्या होगा, आपके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखियो जैसे कि हम लोग अब करने वाले हैं। सो हियर वी जस्ट यूज द एच आर बिटवीन द ब्लॉक्स एंड व्हेन। तो ब्लॉक्स एंड व्हेन कहाँ है हमारा? यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा ब्लॉक्स एंड व्हेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एच आर। सो एच आर लिखा हमने, एच आर जब कंट्रोल एस किया और वापस आए यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं इसको तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई और वो उसके नेक्स्ट लाइन में चला गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बी आर एंड एच आर। इसके बाद में है आपका जैसे कि नेक्स्ट है आपका बोल्ड एंड इटैलिक टैग। ओके, सो बोल्ड एंड इटैलिक कैसे करना है आपको? तो सपोज हमको एक पर्टिकुलर वर्ड को पैराग्राफ में से बोल्ड करना है या फिर इटैलिक करना है, सो दैट टाइम हमको यूज करना पड़ेगा बोल्ड और इटैलिक। ओके, सो कैसे यूज करते हैं हम लोग बोल्ड का? आपको जब भी आप लोगों ने वर्ड यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि बोल्ड क्या काम करता है। तो सपोज यहाँ ये डिजाइन लिखा हुआ है, इसको हमको बोल्ड करना है, अलग से एम्फसाइज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? टैग लगाया और बस बी लग दिया। ओके, और इसके जस्ट बाद में बी को क्या करना है? क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए ये टैग लगाया और बी को क्लोज कर दिया, ठीक है। सो बाय दिस टैग दैट पर्टिकुलर वर्ड विल बी डिस्प्ले एज एन बोल्ड, ठीक है। तो यहाँ गए, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, तो देखिए ये डिजाइन जो है बोल्ड हो गया। बट अगर सपोज करो पूरी लाइन को बोल्ड करना है तो पूरी लाइन को क्या करेंगे? टैग जैसे डिजाइन के बाद में पूरी लाइन को करना है डॉक्यूमेंट तक, तो यहाँ गए लास्ट में जाके आप लोग इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गए, ये बोल्ड यहाँ तक सेव करते हैं, यहाँ गए तो ये देखिए ये पूरी लाइन बोल्ड हो गई। और ऐसे ही अगर आपको इटैलिक करना है तो इटैलिक के लिए क्या करोगे आप लोगों को? जैसे मैं नेक्स्ट लाइन को इटैलिक कर देता हूँ, तो इटैलिक करने के लिए यहाँ क्या करना है आपको? टैग चालू करना है। टैग चालू करने के बाद में क्या करना है? आई लगाना है। आई स्टैंड फॉर इटैलिक। और जहां तक आपको इटैलिक करना है वहां तक ले जाइए कर्सर को। जैसे सपोज करो, चलो मैं गैलरी तक कर देता हूँ, तो इटैलिक को बंद भी करना पड़ेगा। तो क्लोज एंड आई, सेव किया, सेव करने के बाद गए यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये क्या हो गई? इटैलिक हो गई। So this is the brief introduction about the HTML, that how we can create an HTML file, then how we can run the HTML file. So इस वीडियो में आप लोगों ने यही देखा कि HTML फाइल होती क्या है, एक्चुअली में HTML है क्या, कैसे हम लोग इसको फाइल को बनाते हैं, टैग्स क्या होते हैं, जो स्मॉल टैग्स हैं वो क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के कंटेनर और एम्प्टी टैग होते हैं, ठीक है, और कैसे हम लोग इस फाइल को रन करते हैं। Okay, so last one is the comment tag. Okay, so sometime you want to insert a note, okay, for yourself, जब भी हमको कोई नोट इंस्टो मतलब नोट लगाना हो जो हमको डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, that time we use the note comment tag. So but you do not want to display in the browser, in such case the comment tag is used, so you can use the comment tag in two way. कमेंट आपको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जस्ट इस तरीके से आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, ये टैग लगाया और ये नोट वाला साइन जो आपको विद द हेल्प ऑफ स्पेस बटन आप जब वन प्रेस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, देन डबल बार माइनस लगाया, फिर उसके बाद में जो भी आपको कमेंट लिखना हो मैंने जस्ट रैंडम टाइप चीज कर दी है, ठीक है, और उसके बाद में वापस माइनस माइनस देन क्लोज कर देना है, ठीक है। सेव करके देखते हैं, सेव किया और फाइल में गए, जो भी हमारी फाइल थी, ठीक है, यहाँ पे रन हो रही है फाइल, और इसको सेव करके देखिए रिफ्रेश करते हैं तो देखिए कोई चेंजेस नहीं आए। सो दिस टैग इज यूज एज अ कमेंट। ओके, सो
इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि HTML फाइल कैसे बनती है, कैसे हम लोग उसको रन करते हैं. Okay, so keep this watching this video, this series of HTML. If you have any doubt and any query, so you are free to ask. You just write your query in comment section, or you can message me. So stay happy and stay safe. Thank you.